شمالی کشیر ہندس اوڑی ورملس مز موسوم بچہ جنگلی جانور سن شکار 9 وُہر بچہ جہاں بحق علاقس مز خوف دہشت ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر سن تلمل گاندربل دورہ انتظام ہز سام مکمل انتظام کرنے افسرن ہدایت تو جموں کشیر زن سڑکن پہ انسانی زو زائ سپدنک سلسلہ بدستور جاری مینڈرس مز تازہ حادثس دوران اخ زن جاں بحق مزید 2 نفر زخمی السلام علیکم ناظرین رات سن 9 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وادی کشیر ہندن مختلف علاقن مز یہ جنگلی جانور بستین مز داخل سپدن ست عام لوکن مز خوف دہشت وچھن تاز تام قیا معصوم شر یمن جانورن ہند شکار تہ سپد تت آز شام پت چھولن اوڑی مز تمہ سات لوک دم پھٹ سپدمت یل ات اخ 9 وُہر بچہ جنگلی جانور سن شکار سپود ون زِ شام پت جنگلی جانورن ضمیر قریشی ناوک یہ بچہ شدید زخمی کورمت تو یدوے یہ بچہ زخمی حالتس مز ہسپتالس مز واتناؤن آو تاہم زخمن ہز دگ نویترن کن جاں بحق سپدمت یپر یہ واقع پیش ینس ستی علاقس مز خوف دہشت تہ وچھنہ یل زن وائلڈ لائف محکم کیو ذمہ دارو طرف وادی ہندن تمن علاقن یمن مز جنگلی جانور نمودار سپدمت لوکن ون آمت تم گھن پھیرنس تھورنس احتیاط ورتن یُتھ زن کھانا حادثہ پیش یی اوڑی ورملس مز تازہ حادثہ ات پہ مزید تفصیلات فراہم کران ارشاد بٹ بارامولہ کے سرحدی علاقے اوڑی چولہ بھی کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انسیڈنٹ پیش آیا بتایا جاتا ہے ایک بچے کے اوپر تیندوے نے حملہ کیا اور یہ جو بچہ ہے 9 سالہ یہ اس کی موت واقع ہوئی ہے اور جو ہی یہ انسیڈنٹ پیش آیا اس کے بعد جو ہے اس بچے کو ہسپتال لیا گیا یعنی کہ SDH سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اوڑی پہنچایا گیا تاہم ڈاکٹروں نے اس کو جو ہے مردہ قرار دیا اور اس کا جو نام ہے ضمیر احمد قریشی یہ چولہ بی کا رہنے والا ہے اور دیکھا جائے اس حملے کے بعد یعنی کہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہم نے باقاعدہ طور پر BMO اوڑی بلوندر سنگھ کے ساتھ بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کا جو خون جو ہے وہ کافی بہا اور اس کے بعد جو ہے اس کو یہاں پہ پہنچایا گیا اور خون بہنے کی وجہ سے جو ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے 9 سالہ یہ بچہ یہ اوڑی چولہ کا رہنے والا ہے جس کی موت واقع ہوئی ہے اس سے پہلے کی بات کریں یہاں پہ لگاتار جو ہے جنگلی جانوروں کی جانب سے اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے رونما پیش آتے ہیں چاہے ہم یہاں پہ سرحدی علاقوں کی بات کریں یا میدانی علاقوں کی بات کریں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور تیندوے کو دیکھا گیا یہاں پہ قائل باغ کے علاقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے ہم اشکرا رنگباغ علاقے کی بات کریں جہاں پہ 1 مہینہ سے 2 تیندوے جو ہے وہ نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے ہم سنگھ پورہ کی بات کریں یا گتیار کانڈ باغ فتح پورہ خوش باغ یا دیگر جو مقامات ہیں جہاں پہ یہ جنگلی جانور نمودار ہوتے ہیں ان جنگلی جانوروں کو جو ہے قابو کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ وائلڈ لائف محکمے کی طرف سے کافی پہل تو کی جاتی ہیں لیکن ان کو جو ہے ابھی تک قابو نہیں کیا گیا اور جس طرح سے یہاں پہ لوگ اکثر و بیشتر جو ہے الگ الگ علاقوں میں جو ہے شکایتیں کرتے ہیں ان جنگلی جانوروں کو جو ہے قابو کرنے کی ضرورت ہے تاہم ابھی تک جو ہے کسی جنگلی جانور کو جو ہے یہاں پہ قابو نہیں کیا گیا بارامولہ سے میں ارشاد بٹ گلستان نیوز کے لیے جموں کشیر زن سڑکن پہ سڑک حادثن دوران انسانی زو زائ سپدنک سلسلہ بدستور جاری تت مینڈرس مز حادثہ پیش آمت یتھ دوران اخ زن جاں بحق سپز ون مینڈر علاقس مز اکس لوڈ کیریئرس تمہ سات حادثہ پیش آمت یل لوڈ کیریئر ڈرائیور سند قوبو نبر سپدت کھائی مز لائنہ آو یدوے حادثہ پیش ینس ستی بچاؤ کاروٲیی شروع کرنا آئی یتھ دوران 3 زخمی علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آئی تت اخ زن زخمن ہز دگ نویترن کن فوت سپزمت یل زن مزید 2 زخمین ہند علاج ہسپتالس مز جاری ٹاٹا سومو کا بلنوئی کے ایریے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس میں ایک فیمیل جو تھی اس کی آن سپاٹ ڈیتھ ہوگی اس کو ہم نے لاسٹ رائٹس کے لیے آفٹر میڈیکو لیگل فارمیلٹی پولیس کو ہینڈ اوور کر دیا ہے 3 انجورڈ ہوئے ہیں ان میں سے 1 کریٹیکل ہے 2 ہیں ان کو مائنر انجریز ہیں اس کو ہم سٹیبل کر کے فار اسپیشلائز ٹریٹمنٹ ہائر فیسلٹی میں
इन वलिस वक्तस मज ये तुलमुल गांदरबलस मज खीर भवानी मुनक़द सपद तत आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन अतुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तत तिमो वोनमुत ज़ायरीन बापत इन महकम तरफ माकूल इंतजाम करने युत जन और इन वाले ज़ायरीन सेहतस हवाले कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पे। आज आपने देखा कि हमारा हर साल की तरह जैसे कि आपने कहा कि यहाँ हमारे इंतज़ामात रहते हैं। ये माता खीर भवानी का जो यहाँ मंदिर है, लोग आते रहते हैं राउंड द ईयर। और ये जो मेला लगता है हर साल की तरह इस साल भी हेल्थ ही नहीं बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स, आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली जिसमें हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना रोल है वो करेंगे और बाज़ाब्ता वो तैयारियाँ हो रही है। हमारे हेल्थ के हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने अपनी तैयारियां स्टार्ट करी है, चाहे वो ओपीडी होगा, आईपीडी होगा, जो भी जिस टाइप का ट्रीटमेंट यहाँ लगे वो हम बिल्कुल रखेंगे और इन एडवांस रखेंगे। मेला तो हमारा जो स्टाफ ड्यूटी रहेगा रोस्टर के हिसाब से 24/7, जिसमें डॉक्टर रहेगा, मेल मेडिकल डॉक्टर, फीमेल मेडिकल डॉक्टर, उसमें स्पेशलिस्ट भी रहेंगे जिसमें फिजिशियन होगा, सर्जन होगा, ऑर्थोपेडिशियन होगा, इवन पीडियाट्रिशियन होगा और गायनिकोलॉजिस्ट भी होगा, ताकि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमारा कैंप तो 11 से ही स्टार्ट होगा। यहाँ जो मेन मेला जो होता है वो 14 को होता है, लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो 11 से ही यहाँ रहेंगे राउंड द क्लॉक 24/7। इन एडिशन टू दिस वी हैव एस्टैब्लिश्ड 2-3 मोर कैंप्स हियर। एक तो जो मेन क्रॉसिंग है उधर पे हमारा एक फर्स्ट एड स्टाफ रहेगा, एक कैंप रहेगा। उसके बगैर जो यहाँ यूनिवर्सिटी में जहाँ इनका रात को रहने का इंतज़ाम किया गया वहाँ भी राउंड द क्लॉक हम मेल डॉक्टर भी रखेंगे, फीमेल डॉक्टर भी रखेंगे, अलॉन्ग विद ऑल द सपोर्ट स्टाफ। और उस स्टाफ के बगैर जो मेडिसिन होंगे, दवाइयाँ होंगी, डिस्पोजेबल्स होंगे, जो चीज़ें भी होगी वो बिल्कुल वहाँ मैसर रहेंगी और यहाँ भी मैसर है। हर सिस्टम में एक स्टाफ जो रहता है, हमने आज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, चाहे हमें किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी लाने पड़े वो हम ले आएंगे। और हम किसी एक ही हॉस्पिटल पे कभी लोड डाला नहीं जाता है, चाहे ये प्रोग्राम हो या हमारा श्री अमरनाथ जी यात्रा है या कभी मुहर्रम होता है या कोई भी और हाजियों के लिए उनके लिए कोई इंतजाम करने पड़ते, हम एक ही हॉस्पिटल या एक ही हेल्थ फैसिलिटी पे लोड नहीं डालते, बल्कि हमारे पास जो डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी मुलाजिम लाते हैं, डॉक्टरों को लाते हैं, स्पेशलिस्टों को लाते हैं और वो एक ही हॉस्पिटल पे लोड नहीं पड़ेगा और वो राउंड द क्लॉक अच्छे से चलेगा, क्योंकि वही एक नज़दीक हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। खुदा ना खास्ता कि कभी ये भी होता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, किसी भी जो जहाँ पे भी ज़्यादा गैदरिंग होगी वहाँ कोई एपिडेमिक होने का खतरा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फुली इक्विप्ड रहना चाहिए, मैन पावर वाइज, मशीनरी वाइज, इक्विपमेंट वाइज, ड्रग एंड डिस्पोजल वाइज। उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्टन लोकसभा इंतखाबन हंद नतीजन हवाले कत करान वोनमुत खान साहब इलाकस मज पार्टी लीडर तो वर्करों तरफ उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज दोर रात मेहनत कर्मच यिल जन तिमो वोन उमर अब्दुल्ला हारनावनस बापत आस तमाम सियासी जमात मुतहद वुश्न यिवान। मैं तो ज्यादातर बताऊंगा कि खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी का उन वोटरों का पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी के हक में और मेरे कहने पर वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसको कहते हैं कि 15,000 की लीड खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 मत मुकाबल थे। 15 के साथ लड़ा मेरे वर्करों ने, मेरे साथियों ने, एक बहुत बड़ी फाइट थी। तो 15 लोग जो डिफरेंट पार्टियों से डिफरेंट लीडर्स थे, उसमें से बहुत सारे बड़े कदावर लीडर भी थे जो 2-2 बार मिनिस्टर, 3-3 बार रह चुके हैं और भी एमएलए रह चुके हैं। तो बहुत सारे लोग वो थे मध्य मुकाबल खान साहब में, तो उनसे मेरे वर्करों ने मुकाबला करके 15,000 की लीड ले ली। शुक्रिया अल्लाह का पहले, फिर उन वर्करों का और उन लोगों का जिन्होंने वोट डाले। अब रही बात कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो ऑब्वियस ही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले भी आपने मुझे इंटरव्यू किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें लद्दाख लेकर ले जाएंगे, 3 यहाँ की ले जाएंगे और जम्मू से एक कांग्रेस ले जाएगा।
मगर चूंकि इसमें कुछ जो एक सीट पर जो हो गया, हमारी जो उमर साहब की सीट पर, उस पर हमें भी सोचना है, क्योंकि वो सीट इलेक्शन वो बनाया गया, मुद्दा उसका बनाया गया हिंदुस्तान वर्सेस उमर अब्दुल्ला। तो उनको जिन लोगों ने वोट डाला उन्होंने एंटी इंडिया डाला, ये समझ हो कर कि जैसे कि उमर अब्दुल्ला इंडियन है, उसके अगेंस्ट हमें वोट डालना है। ये जीत आने वाले असेंबली इंतखाबात की पेशन गोई है। लोगों ने मन बनाया है, जिस तरह से आज पार्लियामेंट का मन बनाया था, इसी तरह से असेंबली का मन बनाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेटों को कामयाब करके रहे। आलमी माहौलियात किस दोस हवाले आज सुंबल बंडपुरिस मज अर्बन लोकल बॉडीज तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर अलावा दोयमो जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पे खरवन जिले सफाई अमल मज अन्न आई, तत डायरेक्टर मौसूफन वोनमुत ज माहौलियात साफ पाक तो माहौलियाती तवजुन बरकरार थावन बापत जरूरी ज प्रेत कह जमीरस कम युद्ध जन सु मकसद पूरा सपदी यम बापत यह दो मनावन युवान। लोगों से यही अपील है कि जो आज का हम दिन मना रहे हैं, इसका मकसद होता है लोगों को याद दिलाना कि हमारा हिस्सा एनवायरनमेंट में कितना है, हमारी जिम्मेवारी कितनी है। और गुजारिश ये रहेगी कि इस दिन को यहाँ ही हम ना भूल जाएं। मैं बहुत खुश हुई कि यहाँ पे हमारे साथ पूरा सुंबल जुड़ा हुआ था, खासकर सिविल सोसाइटी के नौजवान हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने एक वादा किया है कि ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यूस ड्राइव रहेगी और हम इस डल को, इस वाटर बॉडी को बचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो भी एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, जो भी इसमें कुछ इलाकों से गंद वगैरह लोग डालते हैं, हम उनसे भी मिले, हमने उन्हें मना किया। तो अपने यहाँ पे हमने डायरेक्शंस भी दे दी जो हमारे अपने अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, कि वो इसका वॉच रखे और अगर आगे भी कोई ऐसा करता है तो उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम रहा जिसमें स्कूली बच्चे थे, यहाँ के शहरी थे, डिफरेंट तबकों से वाबस्ता लोग थे, उनसे बात हुई। उनको एक एहसास दिलाया गया कि हमारा रोल कितना है। भले ही हम एक छोटे पैमाने पे अपना रोल अदा करें, लेकिन जब बहुत लोग फिर मिलते हैं तो वही एक कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है हमारे लिए। और यहाँ के लोगों ने काफ़ी एंथुसियाज्म दिखाया इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए, और उन सब ने कहा कि हम अपने सर को, इस वाटर बॉडी को बचाना चाहते हैं। जहाँ पे हमने अभी प्लांटेशन ड्राइव भी की ताकि इसकी जो पेरिफेरल एरिया है वो भी सेफ गार्ड हो जाए। और ये जो ड्राइव है आज की जो हमने शुरू की, ये यहाँ ही अख्तिताम नहीं होगी, ये लगभग 15 दिन में एक बार क्लीनलीनेस ड्राइव इसकी होगी, जब तक ये डल पूरा मुकम्मल साफ हो जाए। पोषण प्रोजेक्ट राजवार तरफ आंगनवाड़ी सेंटर पजालपुर हंदवरिस मज अमे हवाले तकरीबी हूं सांस करना आमुत, यथ मज ICDC के DSQ जिम्मेदारों, आंगनवाड़ी वर्करों तो बच्चों शिरकत कर। अत मौके पे ये अनपोश तेल ये वन पोश महावरस हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज माहौलियती तवजुन बरकरार थाने बापत जरूरी ज्यादा खोत ज्यादा यीन कुल लागन तो लूकन यी अमे हवाले जान दिन। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड को हैप्पी एनवायरनमेंट डे 2024। आप जैसा कि जानते हैं कि 5th ऑफ एवरी जून इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसका मैसेज यही रहता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, इट्स लाइक द अर्थ, वी शुड बी दैट शुड हैव आई कैन से दैट द प्रॉपर वे टू लिव। तो एवरीथिंग विच इज अराउंड अस, वो हम कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उस नेचर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे सही रख सकते हैं, तो उसी को लेके आज हमने भी एक पहल की ICDS प्रोजेक्ट राजवार से। आज हमने एक प्रोग्राम इस तरह मुरातब किया कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो एनरोल्ड बेनिफिशरीज है, चाहे नर्सिंग मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, हमारे बच्चे हैं, इन सबको आज हमने एक नेचर वॉक पे लाया। और नेचर वॉक भी कहाँ, जहाँ हमारी पोषण वाटिका है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ICDS डिपार्टमेंट में जो एक
हम कई सालों से पोषण वाटिकास पे काम कर रहे हैं। इन पोषण वाटिकास का मतलब यही है कि ये न्यूट्रिशन गार्डन्स है। यहाँ पे हमारा जो फ्रेश फ्रूट है या जो फ्रेश वेजिटेबल्स है उनको हम ग्रो करके अपने बेनिफिशरीज को देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपना एक जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उस ग्रीनरी को बनाए रखें। तो पोषण प्रोजेक्ट राजवार की तरफ से एक छोटी सी पहल, जहां हमारी सीडीपो साहिबा शकीला जी और मेरे सारे सुपरवाइजर जो प्रोजेक्ट के थे वो यहाँ पे हैं। एक पाजलपुरा एक इस इलाके में आके हमने सोचा कि इस एनवायरनमेंट डे पे हम एक मैसेज दे दें अपने बच्चों के समेत जो हमारे एनरोल्ड बेनिफिशरीज है, जिसमें कि हमारी एडोलसेंट गर्ल्स भी रहती हैं। तो सबको मिलके हमने सोचा कि हम एक मैसेज आज दे दें कि दिस एनवायरनमेंट बिलोंग्स टू अस, बिकॉज यू आर वॉचिंग कि क्लाइमेटिक चेंजेस कितनी आ रही हैं। जब तक हम अपनी प्रगति को, जब तक हम अपने एनवायरनमेंट को साफ नहीं रखेंगे इन एवरी सेंस, बिकॉज एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग, वी आर टॉकिंग ऑफ नेचर, वी आर टॉकिंग ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, लाइक एवरीथिंग वी हैव टू वर्क ऑन। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आवर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, जिन्होंने कि बहुत अच्छा मैनेज किया था। और आज हमने एक मॉडल के तौर अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को बोला कि हर सेंटर पे हमें ऐसे ही जो है बच्चों को नेचर के साथ इंटरेक्ट कराना है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रोग्राम। आप देखिए, जब से ये स्कीम राइज हुई है तब से लेके आज तक बहुत सारी चेंजेस है। हमारे जितने भी लोग रहे हैं जिन्होंने ICDS को एक अथॉरिटी के तौर जो काम कर रहे हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ICDS इज बेसिकली अ डेवलपमेंट सेंटर। इट इज नॉट ओनली टू गिव द न्यूट्रिशन बट इट इज अ डेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पे इस सेंटर पे हम हर तरह की डेवलपमेंट करते हैं, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा सोशल डेवलपमेंट, एवरी टाइप ऑफ। बट अब क्या है कि धीरे धीरे एक चेंज आ रही है। हमारे जो किंडर गार्डन्स रहते हैं, अभी बहुत सारे किंडर गार्डन्स हैं जहाँ पे कि एक्सपेंडिचर हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है, अगर वो उस पे सोचेंगे तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारी तरफ से एक अभियान चलेगा इंशाल्लाह, जिसमें कि हम लोगों को अवेयर करेंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर इज नॉट ओनली फॉर द न्यूट्रिशन बट आंगनवाड़ी सेंटर इज अ डेवलपमेंट सेंटर। एंड आवर आंगनवाड़ी वर्कर्स माशाल्लाह, यू सी नाउ द HR पॉलिसी आई है। अब हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स दे आर ट्राइंग टू इक्विप एवरीथिंग। आप देख रहे हैं हमारा पोषण ट्रैकर चल रहा है। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स डिजिटल वर्ल्ड में काम करने की अहल हो चुकी है और वो इस आंगनवाड़ी सेंटर को सिर्फ न्यूट्रिशन सेंटर नहीं बल्कि एक डेवलपमेंटल सेंटर के तौर पेश करेंगी। बट हम अपनी कम्युनिटी से ताउन चाहते हैं। मैं आपकी वसादत से पूरी अपनी कम्युनिटी को ये कहना चाहूंगी कि हम ICDS वाले जितने भी इसमें काम कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम चाहते हैं कि आप इसको वाइब्रेंट बनाने के लिए आप हमें ताउन करें और अपने बच्चों को हमारे इस डेवलपमेंट सेंटर पे भेजें, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को जिस नॉलेज से इक्विप होना है, I hope and we hope all that they are equipped with that much of developmental techniques and we will try to implement that. तफसील ज़ारियात त्रालुक लूक ये सड़कें हज शहर पर कर पत्म कई कॉल पे इंतजामिया मंग करान तत इंतजामिया तरफ सड़कें हज शहर पर करनस हवाले कदम तुलना आमत यथ दौरान सड़क पे तारकोल वहरावनच काम जारी है। जन मुकामी लूकों तरफ अमे हवाले खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज सड़कें हज शहर पर करने सत वात ज़रारियार तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठोई राहत। जी सर, हमें पिछले 70 साल से बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानियाँ थी कि हमारी यहाँ अगर कोई डिलीवरी केस होता था या कोई ऐसा पेशेंट होता था कि जिसको हम लेकर जाते थे, हम चारपाई पे उठा के उसको ले जाते थे। तो आज पहली बार RDB डिपार्टमेंट के हम इस गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है कि जिस गवर्नमेंट ने आज हमारी पहली बार जो हमारी ये समस्या थी, हमारी ये मुश्किलात थी, ये दूर कर दी कि हम बहुत शुक्रगुजार इस गवर्नमेंट का वेलकम कर रहे हैं कि जिस गवर्नमेंट ने हमारी पहली बार आज हम पे नजरसानी की। तो हमारी ये रोड का काम चल रहा है, तो उनके हम बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने आज पहली बार हमें यहाँ मैग्नम डाला और ये रोड हमारी चल रही है, इसका काम चल रहा है, बड़ी जोरों से चल रहा है। इंशाअल्लाह और रहमान के इससे पीछे भी इंशाअल्लाह हमारी जो समस्या होगी तो वो इंशाअल्लाह और रहमान आगे आगे चलती रहेगी कि हमारी देखभाल आज तक किसी ने नहीं की। आज पहली बार हमारी देखभाल हुई है, पहली बार यहाँ मैग्नम डाला गया। हमारे बच्चों को चलने में भी आसान होगा, स्कूल जाएंगे या अगर कोई बीमार होगा इंशाअल्लाह और रहमान के हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ। सर, मीडिया के बारे में हम कहते हैं इंशाअल्लाह और रहमान के इन्होंने बार बार हमारा कहते रहते कि हमारी लास्ट का जो ये गाँव है कि ये पसमंदा पड़ा हुआ था, इसका आज तक किसी ने गौर नहीं किया, न हमें किसी ने बोला है कि आज पहली बार इंशाअल्लाह और रहमान हमारा जो ये मसला था, ये मसला हमारा हल हो रहा है। हमारी रोड का बड़ी जोर से काम चल रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार है इस गवर्नमेंट को जिसने हमने सड़क दी है और हमने टूरने फिरने के मुश्किलात था वो हल हो गया। हम तो बहुत शुक्रगुजार और उनको भी जिन्हें ये सड़क आनी
हम इसका बहुत शुक्रगुजार। परेशानी होती थी, हमने रास्ता नहीं था, हम जो बीमार पड़ता है हम उठा के ले चलते हैं। हम शुक्रगुजार उसको जिसने हमने शिरकत दी है, और इनको भी, हमारे भाइयों को भी शुक्रगुजार है, ये अच्छा काम करता है। बहुत शुक्रगुजार हम। आज सड़क बनी है, हमने पहले बहुत मुश्किलात थी, जब बारिश बर्फ पड़े थी, हम उठा के कंधों पर बच्चों को बुजुर्गों को चलते थे वहाँ। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट को जिसने हमने सड़क दी। और बहुत तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ, हमको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी। हम यहाँ चल नहीं सके थे, कुछ नहीं, हमको किसी को कहने लायक नहीं थे, हम बोलने नहीं थे, हमने बोलने दे नहीं थे। पहली बार हम शुक्रगुजार इनको, पहली बार हमने देखा है। ये अनकनेक्टेड रोड था अभी तक, तो पिछले दूसरे 2 साल से इस पे काम चल रहा है। तो टोटल लेंथ इसकी 3 किलोमीटर है, उसमें से 2400 मीटर इसमें मैग्डमाइजेशन है, फुल मैग्डमाइजेशन, और जो 700 मीटर है उसमें सिमडन से। बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो भी रहते हैं उनको अगर कोई पेशेंट होता या कि कहीं पे जाना होता तो वो ऐसे पैदल सफ़र करते थे 3-4 किलोमीटर पहले, या बीमार कोई हो जाता था तो उसको चारपाई पे लेके जाते थे यहाँ से मेन रोड तक, जो यहाँ से दूर 3 किलोमीटर है। ड्रेन जो है 1 किलोमीटर टोटल है, तो जो हमने लगभग कंप्लीट की है, अब थोड़ा सा कुछ रह गया है, वो उसका भी काम चल रहा है। शुमाली कशीर हंदिस वारमलिस मज आज अकिस निजी स्कूल खिलाफ वालदेनों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल वालदेन स्कूल इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल वालदेनों तरफ शिकायत बवान वन आमुत स्कूल इंतजामिया तरफ फीस में बेतहाशी इजाफा करना आमुत, यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। वालदेनों तरफ महकमे तालीम हंदन जिम्मेदारन मंग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दिन युन, युत जन तिमन मज पौध सपदमित खदशात दूर करने यन। फीस खाला फी वरी फीस ते खाला वन फीस गोस कम गस बच्चन हज यड़ पकना कि बच्चन पढ़ाई पकना सोरी पढ़ाई मह घर ते बाकी अखराजात तिम पकन रोटो 19 शादी रिसेप्ट 70,000 क्या रटो तम सात क्या कोर फॉलो तथ अगर वनस वन तथ फॉलो कर तेल क्या कोर्मो तम सात 70,000 करतन फीसस मज एड या तन एडमिशन वापस करो गवर्नमेंट स्कूलस में बच्चन एफर्ट हेका कर वर्दी बुक्स सोरी क्या कोर दोप ना अत क्या बच्चे सुन कैरियर वो खालान 2 रपये 3 रपये 5 रपये खालान 2 हाथ 3 हाथ 1.5 हाथ। रेहाना मैम वन 20 रुपये की कौन सी क्या बात है, 20 रुपया ज़ान कसान अकिस मजदूरस दाल अमिस कुर्सी पे बिहुन अमिस क्या पता 20 रुपया कत वन अमिस पाई पान बच्चन गो सारे फ्री सारे बच्चन लगे अगर न वन बच्चस भरो फीस कहें भरो 2 रेत 3 बच्चस कर प्रेशराइज फीस क्या ओन हु क्या ओन यह क्या तोता मिल टोल दिवान रिजल्ट नी दिवान स्क्रीन शॉट कर तुल मोबाइल पे तोतम न रिजल्ट यह फीस भरो तोतम स्क्रीन शॉट दिवान पता कहें मार्चस मज परस खोलुक फीस को कहें यह गवर्नमेंट ऑर्डर यूनिफॉर्म तक चेंज किताब तक चेंज वो दो फीस गि चेंज कि ऑलरेडी पे यूत सफर कर यूनिफॉर्म ओन किताबन ओतर मे एंडिंग इनफॉर्मेशन कोर्मुत 100 शीट 1.5 हाथ 2 हाथ रपये फीस कर 2.5 हाथ कर आए योर वोन हेको एफर्ट कर कहें 2-4 बच्चे पान मे फैमिली में पान 5 बच्चे वो तुम थोड़ा रिलैक्सेशन मगर उमन मोनुक ना वन रिलैक्सेशन यी कर कहें गई रेहाना मैडम नश तम वो यह तान यह क्या फीस फिक्सेशन कमेटी तान दोपन सह श्रीनगर रेहाना वाइस दोपन यह फीस फिक्सेशन कमेटी वो अमिस दोनस वो वो यूर त्रेम बच्चे क्या पता तमिक दोपन सह श्रीनगर हेको तसर कर कहें पर ईयर वो किताब पे अन बुक्स पे कूत सफर कर नर मजूर अमीर कि गरीब पेरेंट वोन तुम करो पे रेट तुम पर वह फीस खसान व अगर वो मार्चस मज वोनमुत नमो पन बच्चे यह बच्चन एडमिशन कोर यमो रटिक 37,000 बे रटिक 2,000 रपये फीस तथ दितुक रिसेप्ट 37,000 आन रिसेप्ट दिन एडमिशन फीस। तो नाजरीन खबरनामान दियो इजाजत खुदा हवाल।